Hello students, welcome to you all on official YouTube channel of Sanskaram Public School. Students, today we are going to start the module number 4 of our history chapter, the age of industrialization. Students, in this module, we are going to discuss who were the earliest entrepreneurs, those started factories in India, and where they have got their wealth and where the workers come from and how the production was started in India. So students, let us start. The first cotton mill in Bombay came up in 1854 and it went production 2 years later. कि भारत में पहली कपड़ा मिल जो है वो 1854 में लगी और 2 साल के बाद उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ. By 1862, 4 mills were at work with 94,000 spindles and 2,150 looms. Around the same time, jute mills came up in Bengal and first being set up in 1855 and another one 7 years later. In 1602, in North India, the Elgin mill was started in Kanpur in the 1860 and a year later the first cotton mill of Ahmedabad was set up. By 1874, the first spinning and weaving mill of Madras began production. So student, you have got the scenario कि North India, South India, East India, West India. Approximately 54 to 74 जो हमारी इंडस्ट्री है within 20 to 25 ईयर वो एक्सपेंड हो चुकी थी. Now we are going to discuss who were the earliest entrepreneurs who set up these industries, where did the capital come from and who came to work in the mills. So come to the next paragraph, the earliest entrepreneurs. Before this discussing, we are going to see the picture of our earliest entrepreneur, Jamshedji Jiji Boy. Jiji Boy was the son of a Parsi weaver, like many others of his time. He was involved in the China trade and shipping. He owned a large fleet of ships, but competition from English and American shippers forced him to sell his ships by 1850. So student, by this we can understand that the story of earliest our entrepreneurs. So many our earlier entrepreneurs bought their capital from the shipping business, but they have contributed through the triangular trade of China, India and Britain. But student, we can see that due to the steamship, they were throwing outside from the business by Britishers. Now the wealth from that earned from that business they put into the industries. So these the China trade is the main reason that why our Indian entrepreneurs started business in India, factory production in India. So student, we are going to continue our next paragraph, the early entrepreneurs. Industries were set up in different regions by varying sorts of people. Let us see who they were. The history of many business groups goes back to trade with China. I have already discussed with you. From the late 18th century, as you have read in book last year, the British in India began exporting opium to China and took tea from China to England. Many Indians become junior players in this trade, providing finance, procuring supplies and shipping consignments. Student, you have read triangular trade between India, China and Europe. The same is discussing here. Having earned through trade, some of these businessmen have vision of developing industrial enterprises in India. In Bengal, Dwarka Nath Tagore made his fortune in China trade. He turned to industrial investment. Before he turned to industrial investment, setting up 6 joint stock companies in the 1830 and 1840. Tagore's enterprises sank along with those of others in the wider business crisis of 1840 1840 के दौरान जो बिजनेस के अंदर मंदी चली थी उसके दौरान इनका भी नुकसान हुआ. Student, you have seen the image of Dwarka Nath Tagore, our earliest entrepreneurs. Dwarka Nath Tagore believed that India would develop through westernization and industrialization.
He invested in shipping, shipbuilding, mining, banking, plantation and insurance. He was the great grandfather of Rabindranath Tagore also, and he was the founder of Tagore Jorasanko family of Tagore family. Tagore's enterprises also sank, but later in the 19th century, many of the China traders became successful industrialists. In Bombay, Parsi like Dinsha Patit and Jamshedji Nuswanji Tata, who built huge industrial empire in India, accumulated their initial wealth partly from export to China and partly from raw cotton shipments to England. कि पारसी ब्रदर्स जो हैं हमारे दिनशा पैटेट और जमशेदजी नुसवांजी टाटा है, जो हमारे अर्लीस्ट एंटरप्रेन्योर्स में से एक थे, उन्होंने भी अपना पैसा मैक्सिमम चाइना ट्रेड के साथ, लेकिन कुछ इंग्लिश जो कॉटन जो सप्लाई होती थी इंग्लैंड को, उस शिपमेंट से पैसा कमाया था. सेठ हुकुमचंद, अ मारवाड़ी बिजनेसमैन हु सेट अप द फर्स्ट इंडियन कॉटन मिल इन कलकत्ता इन 1917, also traded with China. So did the father as well as grandfather of the famous industrialist G.D. बिरला. हमारे फेमस जो बिरला फैमिली के घनश्याम दास जी बिरला है, उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर और G.D. बिरला, इन्होंने भी यही किया कि उन्होंने भी चाइना ट्रेड के साथ पैसा कमाया था और बिजनेस सेटअप किया. तो घनश्याम दास जी बिरला को स्टूडेंट आप ऑलरेडी जानते हैं. दिल्ली के अंदर जो बिरला मंदिर है, ये उसके एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने ही किया था. और हमारी जो पिलानी के अंदर बिरला जो इंस्टीट्यूट है स्टडी के डिफरेंट जो गर्ल्स स्कूल, बॉयज़ स्कूल और डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, वो इसी फैमिली के द्वारा स्टार्टेड है. कैपिटल वाज एक्यूमुलेटेड थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क्स, कि पैसा केवल चाइना ट्रेड के साथ और इंग्लिश शिपमेंट के साथ ही नहीं कमाया गया. हमारे अर्ली जो एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने कुछ और मीडियम से भी पैसा कमाया था. Some merchants from Madras traded with Burma, while other had links with Middle East and East Africa. आपको पता ही है कि जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, वहाँ से हमारा अफ्रीका के साथ काफ़ी ट्रेड चलता है, और ईस्टर्न कोस्ट का जो हमारा ट्रेड है वो काफ़ी सारा हमारे ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, थाईलैंड, मलेशिया वगैरह के साथ काफ़ी ट्रेड चलता है. तो इस ट्रेड के साथ भी हमारे बिजनेसमैन ने काफ़ी पैसा कमाया. They were yet other commercial groups, but they were not directly involved in external trade. कुछ दूसरे व्यावसायिक समूह भी थे जो डायरेक्ट ट्रेड में नहीं थे. ये लोग फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराते थे, जस्ट फाइनेंसर मीन बैंकर का काम कर रहे थे. they were not directly involved in the external trade. They operated within India, carrying goods from one place to another, banking money, transferring funds between cities and financing traders. When opportunities of investment in industries opened up, many of them set up factories. ये हमारे J.N. Tata, R.D. Tata, Sir R.J. Tata and Sir D.J. Tata. You have seen the picture here. In 1912, J.N. Tata set up the first iron and steel works in India at Jamshedpur. Iron and steel industry in India started much later than textile. In colonial India, industrial machinery, railways and locomotives were mostly imported. So capital good industries could not really develop in any significant way till independence. कि हमारे यहाँ जो भी रेलवे का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो ब्रिटिशर्स ने किया था स्टार्टिंग में, और वो सब इंपोर्ट करके ही लाते थे. यहाँ इंडिया में ऐसा कोई फैक्ट्री स्टार्टअप नहीं की थी, लेकिन फर्स्ट जो टिस्को है वो हमारे सेटअप की गई थी टाटा फैमिली के द्वारा ही. लेकिन ये सब जो हमारा नेशनल स्ट्रगल है उसके ड्यूरेशन में ही हुआ, पहले नहीं हुआ था. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ. एज कॉलोनियल control over India tightened, the space within which Indian merchants could function became increasingly limited. जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का, यूरोपियन कंपनीज का, स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडियन ट्रेड के ऊपर कंट्रोल बढ़ता चला गया, तो हम देखते हैं कि जो हमारे इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए स्पेस कम होता चला गया. मतलब कि कहाँ कहाँ उन्होंने किस किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, ये ब्रिटिशर्स हैं वो उनके लिए लिमिटेड करते चले गए. बहुत कम क्षेत्र उनके लिए व्यापार करने के लिए बचा था. दे वर बार्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विद यूरोप इन मैन्युफैक्चर गुड्स, had to export mostly raw material and food grains, raw cotton, opium, wheat and indigo required by British. कि उन्हें फिनिश गुड का प्रोडक्शन करने की, ट्रेड करने की मनाही थी, लेकिन वो ट्रेड कर पाते थे तो केवल रॉ मटेरियल का.
दे वर आल्सो ग्रेजुअली एज आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस। और जैसे जैसे स्टीमशिप आते चले गए उन्हें शिपिंग बिजनेस से भी बाहर कर दिया, तो कहीं ना कहीं इंडियन जो ट्रेड है वो डिक्लाइन में जा रहा था। इसके अलावा हम आगे देखेंगे टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि टिल द 1914 यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज इन फैक्ट कंट्रोल ए लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। थ्री ऑफ द बिगेस्ट वंस वर बर्ड हेगलर्स एंड कंपनी एंड ड्यूले एंड जार्डन स्किनर एंड कंपनी। बेटा ये एनटीएससी में कई बार पूछा गया है कि थ्री, इसको मैच में भी आ जाता है, डायरेक्ट आपसे ऑड वन आउट में भी पूछ लिया जाता है कि भाई चार कंपनियों के नाम दे दिए कि ये पर्टिकुलर कंपनी थी, इसमें से कौन सी नहीं थी, तो आपको ये कंपनी के नाम याद करने पड़ेंगे। कि ये तीन कंपनियां थी जो तकरीबन जो कि क्या प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, सारा डिसीज़न यही लेती थी। इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके लिए इतना रास्ता खुला नहीं था। These agencies mobilize capital, set up joint stock companies and manage them. In most instances, Indian financiers provided the capital while the European agencies made all the investment and business decisions. The European merchant industrialists had their own chamber of commerce, which Indian businessmen were not allowed to join. Now student, we are going to discuss where did the workers come from। कि जब शुरू में हमारे यहाँ कुछ फैक्ट्रियाँ लगी तो मज़दूर कहाँ से आए। तो नेचुरल सी बात है, आरंभ में जो मज़दूर होंगे वो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट से ही होंगे, लेकिन आगे हम डिस्कस करेंगे कि जैसे जैसे फैक्ट्रियाँ बढ़ती चली गई तो दूर दराज के क्षेत्रों से भी मज़दूर हैं वो काम की तलाश में आने लग गए। और ठीक जैसे हमने कि यूरोप के अंदर पढ़ा था वर्कर्स ऑफ लाइफ ऑफ वर्कर्स, तो हम यहाँ भी हम देखेंगे कि काम मिलना कितना आसान था और कैसे मिल रहा था और क्या सिचुएशन थी। वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम? फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर्स। विद द एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज दिस डिमांड इंक्रीज इन 1901 देयर वाज 5,84,000 workers in Indian factories. By 1946 the number was more than 2 crore. Where did the workers come from? In the most industrial region, workers came from the district around. Peasants and artisans who found no work in the village went to the industrial center in search of work. Over 50% worker in the Bombay cotton industries in 1911 came from the neighboring district of Ratnagiri, while the mills of Kanpur got most of their textile hands from the village within the district of Kanpur. Most often mill workers moved between the village and the city, returning to their village homes during the harvest and festival. Student, as you know, ये हमारे आज भी यहाँ चलता है कि आप देखेंगे दिल्ली है या बॉम्बे है, जैसे ही कोई हमारा फेस्टिवल आता है तो हमारे आंध्र प्रदेश बिहारी वाले जो लोग हैं और झारखंड वाले जो लोग हैं या इधर बेंगल साइड वर्कर्स हैं वो अपने घर जाना शुरू करते थे। तो सेम यही सिचुएशन तब भी थी कि जो लोग सराउंडिंग विलेजेस से आते थे, तो अब नेचुरल सी बात है जब खेतों में काम होगा, जब फसल कटाई का काम होगा तो ये लोग अपने खेतों में चले जाते थे और इन्हें पर्टिकुलर छुट्टियां तक मिलती थी। ओवर टाइम as news employment spread, workers traveled great distance in the hope of work in mills. From United Province, for instance, they went to work in the textile mills of Bombay and in jute mills of Calcutta. कि यूनाइटेड प्रोविंस आज का उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और इवन हरियाणा जैसे आज है, हम उसकी बात कर रहे हैं, जैसे हरियाणा से कोई बॉम्बे चला जाए आज काम करने के लिए या कोलकाता चला जाए, तो दूर दराज से भी लोग काम की तलाश में राजस्थान से बॉम्बे, राजस्थान से कलकत्ता, ऐसा काम की तलाश में लोग जाने लग गए। Student, you have seen the image figure 19, young workers of Bombay mill, early 20th century. देखिए कि इनकी ड्रेसिंग सेंस ही बता रही है कि these are the local people who came from the distance areas. Now come to the next paragraph. सेम जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था यूरोप वाले पोर्शन में, getting jobs were always difficult. Even when mills multiplied and the demand for worker increased, the number seeking work were always more than the jobs available. Entry into mills were also restricted, कि इतनी आसानी से मिलों में काम अवेलेबल नहीं था। Industrialists usually employed a jobber to get new recruits, कि इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने जॉबर
नाम की एक नई जॉब क्रिएट कर दी और उस व्यक्ति को, एक एजेंट को रख दिया, उस एजेंट का नाम था जॉबर। तो अंडरलाइन दिस बेटे। अब तो जैसे ये चैप्टर आपका पता ही है, इंटरनल में है, बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा, तो पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि हु वाज अ जॉबर। तो जॉबर क्या था? एक एजेंट था जिसका काम था जॉब के लिए न्यू रिक्रूटमेंट्स लेके आना। वो था कौन? वेरी ऑफन द जॉबर वाज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर। अंडरलाइन करो। He got people from his village, ensured them job, helped them settle in the city, and provided them money in times of crisis. The jobber therefore became a person who, with some authority and power, he began demanding money and gift for his favor and controlling the lives of workers. The number of factory workers increased over time. However, as you will see, there were a small proportion of the total industrial workforce. Student, you can see here the image of a jobber. जैसा कि इसकी फ़ोटो से पता चलता है कि जैसे वो शांत से खड़ा है, ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है। नोटिस हाउ द पोस्चर एंड क्लोथ emphasize the jobber position of authority. Student, here we have two source E and source F that tell us the life of workers at that time. वसंत पारेकर जो कि मिल वर्कर थे बॉम्बे के, ये भी एनटीएससी में पूछा गया है कि वसंत पारेकर कौन था। ही वॉज अ मिल वर्कर। जो मैं बता रहा था कि जॉबर जो है वो किस तरह से काम दिलाता था। द वर्कर वुड पे द जॉबर मनी टू गेट देयर सन वर्क इन द मिल। द मिल workers were closely associated with his village physically and emotionally. He would go home to cut the harvest and for sowing. The kokri would go home to cut the paddy and the ghati, the sugarcane. It was an accepted practice for with the mill granted leave. क्योंकि मिल के जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट उनको भी पता है कि वर्कर आएगा कहाँ से, दूर दराज के एरिया से आएगा और बेचारा खेतों से उनकी ज़िंदगी चलती है, तो उनको फसल कटाई के टाइम पे छुट्टी मिलती थी। अब आ जाइए सोर्स है। भाई भोसले आ ट्रेड यूनियनिस्ट ऑफ बॉम्बे 1930-1940 के आसपास जिन्होंने अपना बचपन बिताया था, वो उसकी बात कर रहे हैं। इन दोज डेज द शिफ्ट वाज 10 hours फ्रॉम 5 PM to 3 AM, ट्रेवलिंग टेरिबल वर्किंग आवर्स। My father worked for 35 years. He got the asthma-like disease and could not work anymore. Then my father went back to village. कि उसने बताया कि जो मेरे पिताजी कुल 35 साल तक ही काम कर पाए। तो अल्टीमेटली पता चलता है कि जो वर्किंग कंडीशन है दैट वाज नॉट हाइजीनिक फॉर द वर्कर्स। सेफ एनवायरनमेंट नहीं था, वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे। तो बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया यहाँ वर्कर्स की लाइफ के बारे में, पर हमारे लिए समझने को इतना ही काफ़ी है कि द कंडीशन बट नॉट सो। स्टूडेंट्स, now we are going to start the another module of this chapter, the peculiarities of industrial growth. peculiarities mean अजीब या अनूठापन, कि भारत के अंदर जो औद्योगिक प्रगति हो रही थी उसमें अनूठापन क्या था। तो पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगी, जैसे क्लास में ही बताती हूँ कि अनूठापन ये था कि जहाँ कॉटन इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री स्टार्ट हो रही है यूरोप में, इंडिया के अंदर इंडस्ट्री है वो नंबर 1 स्टार्ट हो रही है। कॉफ़ी इंडस्ट्री, प्लांटेशन इंडस्ट्री कि यहाँ मशीनें लगाई, कि हमारे यहाँ जो यूरोपियंस थे स्पेशली इंग्लिश, उन्होंने वो इंडस्ट्री स्टार्ट की जिसका कच्चा माल उनको यूरोप में चाहिए। तो हमारे यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं लगी थी भैया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हम बोल रहे हैं, लेकिन था क्या, कपड़ा नहीं बन रहा था। अगर मिल लगी है ना, कॉटन मिल जो आया था 1854 में कॉटन मिल लगी थी, तो कॉटन मिल का मतलब कपड़ा नहीं बन रहा था, धागा बन रहा था, क्योंकि कपड़ा तो ब्रिटिश बनाएंगे ना, हम थोड़ी बनाएंगे। तो ये कुछ अजीब तरह की इंडस्ट्री हमारे यहाँ शुरुआत हुई और क्या हालात रहे वो हम इस मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करेंगे। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज which dominated industrial production in India were interested in certain kind of products. They established tea and coffee plantations, underline this, acquiring land and cheap rate from the colonial government, and they invested in mining, indigo and jute. Most of these were products required primarily for export trade, not for sale in India. I have already discussed with you कि उन्होंने वही यहाँ काम शुरू किया जिससे उनको कुछ फ़ायदा था। हमारे देश की तरक्की का या इंडस्ट्री लगाने का उनका कोई भी इरादा नहीं था। अब आप कुछ बच्चे पूछेंगे इंडिगो क्या होता है।
क्योंकि बाकी चीज़ें तो अब मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। आपने देखा होगा कि जब हम वाइट क्लॉथ्स अपने घर में धोते हैं, मम्मा तो उजाला या रेड ब्लू करके कुछ कपड़े पे डालती है। तो ऐसे ही ये ना एक लाइट ब्लूइश कलर का पाउडर होता है, रानीपाल का डब्बा आता है। ये एक इंडिगो प्लांट होता है, उसका सूखा हुआ पाउडर होता है जो पर्टिकुलर कुछ प्रोसेस करने के बाद बनाया जाता है। इससे वाइट कपड़े में शाइनिंग आती है, दैट इज़ कॉल्ड इंडिगो। और फैक्ट्री में आपको पता है जब वाइट कपड़ा बनेगा तो उसको चमक लाने के लिए इंडिगो, यानी कि एक तरह का नीली होता ही है, लेकिन इससे नीला कलर कम आता है, लेकिन कपड़े में चमक बहुत ज़्यादा आती है, उसमें ये इस्तेमाल होता था। When Indian businessmen began starting up industry in the late 19th century, they avoided competing with Manchester goods in Indian market, क्योंकि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को पता था कि अगर कपड़ा बनाएंगे तो उनकी प्रोडक्ट्स का सामना तो कर नहीं पाएंगे, तो उन्होंने अवॉइड किया। क्या किया उन्होंने? Since yarns was not an important part of British import into India, the early cotton mills in India produced coarse cotton yarn thread rather than the fabric. When yarn were imported, it was only of the superior variety. कि भारत में जो कपड़ा धागा आता था वो सुपीरियर क्वालिटी का आता था, तो हमारे जो अर्लियर मैन्युफैक्चरर ने तो मोटा धागा बनाना शुरू कर दिया। The yarn produced in Indian spinning mills were usually by handloom weavers in India or exported to China. By the first decade of the 20th century, a series of changes affect the pattern of industrialization. कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में शुरू हो गया, लेकिन वो प्रभावित हुआ हमारे देश में जो चल रही, जो हमारी स्वतंत्रता की जो संघर्ष था उसके कारण उसमें बदलाव आया। As the Swadeshi movement gathered momentum, Swadeshi movement 1905 with the division of Bengal जो आरंभ हुआ था, nationalists mobilized people to boycott foreign clothes. Industrial groups organized themselves to protect their collective interests, pressurizing the government to increase tariff production and grant other concessions. तो हमारे यहाँ भी अब जो क्या कहते हैं उद्योगपति हैं, उनके ग्रुप्स हैं, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइज़ किया, और जो बाहर से कपड़ा आ रहा था या सामान आ रहा था, उन्होंने अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ अपने वेलफेयर के लिए कुछ डिमांड्स रखना स्टार्ट किया। From 1906, moreover, the export of Indian yarn to China declined, since produce from China and Japanese will flooded the Chinese market. अब 1906 के बाद क्या हुआ? हमारे इस धागे के व्यापार में भी कमी आनी शुरू होगी, क्योंकि चाइना और जापान में भी मिल लगी और वहाँ से भर गया बाजार उनका भी अपनी खुद की माल से। सो इंडस्ट्रियलिस्ट इन बिगिन शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न टू क्लॉथ प्रोडक्शन। और अब हमारे जो उद्योगपति थे उन्होंने धागे बनाने से आगे की शुरुआत की, अब वो कपड़ा बनाने के उसमें एंटर कर गए मार्केट के अंदर। कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन इन इंडिया डबल्ड बिटवीन 1900 टू 1912, लेकिन ये जो ग्रोथ थी दैट वाज वेरी स्लो। येट टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज स्लो, बट 1914 के अंदर जब युद्ध हुआ तो स्थितियाँ बदली, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। The war created a dramatically new situation, with British mill busy with war production to meet the need of the army. Manchester export into India declined. कि 1914 के शुरुआत में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अब नेचुरल सी बात है, युद्ध हो गया तो जो इंग्लैंड की जितनी भी इंडस्ट्री है वो वारफेयर प्रोडक्ट बनाने लग गई। तो ऐसे में जो कपड़ा वो इंडिया भेज रही थी यहाँ की मार्केट में वो सप्लाई कम हो गई। तो अब हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को मौका मिल गया कि वो उस ब्लैंक को फिल करें, कि मार्केट के अंदर अपना माल डाल दें। Indian mills had vast home market to supply suddenly as the war prolonged. जैसे लंबा युद्ध चला, Indian factories were called upon to supply war needs, jute bag, cloth for army uniform, tent and leather boots, horse and mule saddles and host of other items, यानी कि घोड़े की काठी, पैंट जो लगाने का ये सामान है, जूट बैग्स है, आर्मी में जो भी आर्मी को युद्ध में चाहिए वो सारा प्रोडक्ट्स है, वो अब इंडियन जो हमारी फैक्ट्रीज़ है उनको भी ऑर्डर प्लेस होने लग गया। तो इसका मतलब हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को ग्रोथ करने का टाइम मिला, उनकी डेवलपमेंट का टाइम था।
आप ये सामने इमेज देखेंगे, द फर्स्ट ऑफिस ऑफ द मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आपके लिए इतना ही कह सकती हूँ कि जो व्यापारियों की ट्रेड यूनियन, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट की ट्रेड यूनियन, इसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहा जाता है। ये क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि जो यूरोपियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, तो ये भारत के व्यवसायियों का अपना पहला चैम्बर ऑफ कॉमर्स था। ये अलग अलग रीजन में अब हमारे खुद के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बनने लग गए थे, ताकि आपकी यूनियन बने, आपकी एसोसिएशन बन सके और आप ब्रिटिश कंपनी के सामने अपनी कोई डिमांड रख सकें। न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप एंड ओल्ड, नई फैक्ट्रियाँ लगाई गई, क्योंकि अब हमारी कंपनी जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं उनको काम मिल रहा है और उनको एक्स्ट्रा काम इंग्लैंड से भी ऑर्डर मिल रहा है और इंडिया में मार्केट में उनको कवर करने के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं वो। तो अब उनको क्या किया, और ओल्ड वंस रन मल्टीपल शिफ्ट, और जो पुरानी है उनको मल्टीपल शिफ्ट में चलाना पड़ा। मैनी न्यू वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एंड एवरीवन वाज मेड टू वर्क लॉन्गर आवर्स ओवर द वार ईयर्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो, जैसे जैसे युद्ध चला गया, ये ड्यूरेशन के अंदर बढ़ता गया, तो भारत के अंदर भी प्रोडक्शन बढ़ता गया। मतलब हमारे लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में आई। स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है ये भी हमारे एनटीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि क्या हुआ, कि इम्पैक्ट क्या रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मैनचेस्टर के ऊपर, कि मैनचेस्टर वो कभी भी अपनी वो पोजीशन ले नहीं पाया फिर से कॉलोनीज़ के अंदर। उल्टा ब्रिटेन जो है कि एक इंडस्ट्रियल कंट्री के रूप में था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वो पूरे जो उसकी कॉलोनीज़ थी उसमें कहीं अपनी पावर खोने लग गया था। आफ्टर द वॉर मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन इन द इंडियन मार्केट। Unable to modernize and compete with the US, Germany and Japan, the economy of Britain crumbled after the war. क्योंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन बाकी देशों में भी फैल रहा था, उद्योग फैल रहे थे, तो अब ब्रिटेन को अपनी पोजीशन जो कंट्रोल करनी मुश्किल हो गई थी। कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली। उनका जो ये कपड़े का व्यापार था, जो एक्सपोर्ट का था, वो काफ़ी हद तक गिर गया था। Within the colonies, local industrialists gradually consolidated their position, substituting foreign manufacture and capturing home market. So student, this is the end of our part number 4 of this chapter. If you like my explanation, please subscribe my channel and bye.